Camera. Roll. Action. There is a cycle that kind of happens where people, after a while, emotionally exhausted with particular kinds of characters and they want to see new people. I think right now there is a certain change that's going on. वेलकम टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। और हमारे आज के स्टोरी टेलर हैं फरहान अख्तर, जिनका नाम बन चुका है स्टाइल, प्रोडक्शन डिजाइन और टेक्निकल ब्रिलियंस की न्यू एज पहचान। इनका नाम किसी मूवी के पोस्टर पर नजर आ जाए तो उस मूवी से एक्सपेक्ट किया जाता है सुपर स्टाइलिश स्लिक सीक्वेंसेस, और वो बन जाती हैं द मोस्ट अवेटेड मूवी फॉर इंडियाज यंग अर्बन ऑडियंस। After all, it was Farhan who added the young zeal and spunk to Bollywood films with his directorial debut Dil Chahta Hai. I like things that look good, you know, and in my understanding of what is good, everyone has their own take. But still, I think within that, there has to be a certain honesty towards the kind of film that you're making. Coming of age storylines, buddy films, everyday dialogues, well thought out designed looks for characters, ये हैं फरहान अख्तर के कुछ सिग्नेचर ट्रेडमार्क्स। फिर चाहे दिल चाहता है में आमिर का लुक हो, या लक्ष्य में ऋतिक और प्रीति जिंटा के वेरी डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डॉन में SRK का सुपर कूल अंदाज हो, या प्रियंका चोपड़ा का सुपर हॉट अवतार, Farhan knows how to make his movies look uber cool and give them a stylish edge. The thing that you definitely don't want is style over substance, is what you don't want, you know, but if you can kind of try and find a balance between the two and strike that balance, I think that's the best way for it to work. अपनी डेब्यू मूवी के साथ फरहान ने जीते 20 से ज्यादा अवार्ड्स, which is an unmatched record even today. दिल चाहता है थी एक कमिंग ऑफ एज फिल्म जिसने बॉलीवुड में हासिल कर लिया है एक कल्ट स्टेटस। You see, this is what's interesting. I mean, I remember very clearly, Preeti, we were driving back from famous studios in Mahalakshmi where we were shooting the Koi Kahe song. And she said, listen, I want to tell you something. This film is going to be a cult movie. And I was like, really? You know, I mean, like, you know, you're working every day. You don't really stop to think about these things. And she's like, just mark my words. She's like, I've worked on many films before this, but somehow, just the vibe of this film and the way it's written and the way it's put together, I'm just telling you it's going to be a cult film. And I was like, great, I hope it becomes a cult film. And I mean, now when people say that, she's the only person I think of. Dil Chahta Hai was a multiplex hit, and suddenly to urban India, Bollywood became a cool word. जहां स्टार्स की स्टाइलिंग के लिए फरहान को मिला सपोर्ट उनकी वाइफ अधूना से, वहीं दिल चाहता है कि स्टोरी के लिए उन्होंने सहारा लिया अपने कॉलेज डेज में लिखी डायरीज और अपने रियल लाइफ फ्रेंड्स की लाइव्स का। दैट्स व्हाई फरहान की इस मूवी में हीरोज फिल्मी डायलॉग्स नहीं, ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे जो उनकी ऑडियंस की ही लैंग्वेज थी। और ये थी वो पहली मूवी जिसके प्रोडक्शन डिजाइन में भी इतनी डिटेलिंग थी कि इस मूवी का हर फ्रेम लग रहा था एक मास्टरपीस। दिल चाहता है भले ही एक मल्टीप्लेक्स हिट हो, बट इसने फरहान को बना दिया था वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डायरेक्टर्स इन बॉलीवुड। बट दिल चाहता है तक का ये सफर सुपर स्टाइलिश फरहान के लिए इतना भी इजी नहीं था। Grandson of great lyricist Janisar Akhtar, grandnephew of poet Majaz और writer-lyricist extraordinaire Javed Akhtar and his actor-writer ex-wife Hani Irani का बेटा होने की वजह से राइटिंग और डायरेक्शन तो उनके जीन्स में था, लेकिन उसे डेवलप होते होते काफी टाइम लग गया। छोटी सी उम्र में फरहान को अपने पेरेंट्स का सेपरेशन देखना पड़ा। पेरेंट्स के इस सेपरेशन के दौर में अगर फरहान किसी के सबसे करीब थे तो वो थे उनके फ्रेंड्स और लव फॉर एक्शन मूवीज, और यही है उनकी मूवीज के रेकरिंग टॉपिक्स। इनफैक्ट उनकी डायरेक्टेड 4 मूवीज में से 2 हैं कमिंग ऑफ एज फिल्म्स और 2 एक्शन फ्लिक्स। इसके अलावा फरहान की इन यूनिक और स्टाइलिश मूवीज में एक और कॉमन थ्रेड है, उनके प्रोटैगनिस्ट्स हु आर येट टू फाइंड देयर कॉलिंग। और करीब से देखें तो फरहान की लाइफ भी इसी पैटर्न पर चली है। पढ़ाई छोड़कर घर बैठे टीनेजर फरहान को भी नहीं पता था कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तब तक
जब तक उनकी मॉम ने उनको कुछ कर गुजरने के लिए पुश नहीं किया। फिर तो फरहान ने कई एड एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउसेस की खाक छानी। वो 17 साल की एज में यशराज फिल्म्स की लम्हे के लिए कैमरा असिस्टेंट बने और तब उनको मिला उनका लक्ष्य, जो था बॉलीवुड का एस स्टोरी टेलर बनने का। और शुरू हो गई उनकी जर्नी। Farhan also worked as an AD on Akshay Khanna's debut movie हिमालय पुत्र और स्क्रीन प्ले राइटिंग में अपनी मॉम को असिस्ट करते हुए लिखी क्या कहना, जिसके लिए उनको उनका फर्स्ट अवार्ड भी मिला। मगर ये सब करते हुए फरहान ने अपनी फर्स्ट फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिख ली थी, जिसका नाम था दिल चाहता है। फरहान decided to produce it with his friend Ritesh Sidhwani, and the rest, as they say, is history. दिल चाहता है had two of the best dream songs of recent times. जहां सिड के ड्रीम सॉन्ग कैसी है ये रुत में फरहान ने सहारा लिया था विजुअल ग्राफिक्स का, वहीं सैम का फिल्मी ड्रीम सॉन्ग वो लड़की है कहां था फरहान का एक टंग इन चीक ट्रिब्यूट टू बॉलीवुड सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट एराज। और अब फरहान बन चुके थे बॉलीवुड में एक हॉट प्रॉपर्टी, एंड विद सम ब्रिलियंट सपोर्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट हाउसेस ही वाज रेडी टू रोल हिज मोस्ट एम्बिशियस मूवी लक्ष्य। कैसे फरहान ने लक्ष्य के साथ ब्रेक किए बॉलीवुड में नए नॉर्म्स और फिर सामना किया अपने सबसे बड़े फेलियर का, वी विल सी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक ऑन बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, बी टाउन के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी। वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स और हमारे आज के स्टोरी टेलर हैं फरहान अख्तर। फरहान ने अपनी सेकेंड मूवी के लिए चूज किया एक टोटली अनकन्वेंशनल प्लॉट, कारगिल वॉर एंड द स्टोरी ऑफ एन एमलेस दिल्ली लैड। द मूवी वॉज एप्टली कॉल्ड लक्ष्य। फरहान की फर्स्ट मूवी जितनी फ्रेश थी उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थी उनकी नेक्स्ट मूवी लक्ष्य। जहां बॉलीवुड में ट्रेंड है फॉरेन लोकेशंस पर मूवीज शूट करने का, फरहान ने फिर से दिखाया अपने स्टाइल का जलवा और अपनी सेकेंड मूवी पूरी तरह इंडिया में शूट की। But he went ahead and hired an international crew to make Lakshya look totally international. लक्ष्य में फरहान was working with his childhood friend ऋतिक रोशन और लक्ष्य के साथ फिल्म राइटिंग में 14 years के बाद कमबैक कर रहे थे फरहान के डैड जावेद अख्तर। जावेद साहब की लिखी स्क्रिप्ट में एक बार फिर नजर आने वाले थे बिग बी एक स्पेशल रोल में। मूवी में बैकड्रॉप था कारगिल वॉर का। Laksh for me was set in a world that when I first decided to start making that film, that world was very alien to me, which is the world of the armed forces, you know, and it's not the kind of place or the kind of institution that you can take lightly in a film. So you have to be very, very cautious about how you do it, for which you need to have a great deal of understanding of how things function and how things work. Because I remember very clearly we had a screening for the army general at that time in Delhi, and he said that, you know, this is like after very long I've watched a film which really shows the army the way it is, and for me that was really like a very massive personal victory. Farhan, being a perfectionist, is involved in every aspect of his movies, फिर चाहे वो impossible heights और freezing temperatures में शूट करना ही हो। लक्ष्य फरहान के लिए इस रीजन से भी चैलेंजिंग थी बिकॉज वो शूट कर रहे थे एक्चुअल लोकेशंस पर, और ऐसा करते हुए फरहान की टीम ने बना लिया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी। लक्ष्य की रिलीज फरहान के लिए लेकर आई एक नया रियलिटी चेक, और लक्ष्य का सीरियस टोन शायद आम ऑडियंस को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया, दो द मूवी वॉज अपलॉडेड बाय द इंटरनेशनल मीडिया। इतना ही नहीं, लक्ष्य के बाद एनडीए में एंट्री के लिए अपीयर होने वाले यंगस्टर्स की परसेंटेज में भी एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिला। बॉक्स ऑफिस पर भले ही फरहान मैजिक क्रिएट ना कर पाए हों, मगर लक्ष्य ने अपना काम कर दिया था, एंड ऑलमोस्ट अ डेकेड आफ्टर इट्स रिलीज लक्ष्य इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग वॉर फिल्म्स फ्रॉम दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। There is a cycle that kind of happens where people, after a while, emotionally exhausted with particular kinds of characters, and they want to see new people. It tells you that if you, again, you know, tell a good story, make it presentable, and at the same time infuse it with honesty, you know, like don't try and be manipulative while you're making it, that the audience will recognize that, and they will respect it, and they'll give you something back.
लक्ष्य जैसी पावरफुल फिल्म बनाने के बाद अब फरहान रेडी थे अपने नए प्लान के साथ टू रीमेक वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश मूवीज ऑफ 1970s। ओरिजिनल डॉन की स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने मिलकर ही लिखी थी, मगर 1970s में आई इस मूवी को फरहान देना चाहते थे एक एजी स्टाइलिश फील। और इस काम के लिए फरहान ने न सिर्फ अपने डैड जावेद साहब की हेल्प ली, बल्कि मूवी के कई सीन्स को पॉलिश करने के लिए वो खुद सलीम साहब से भी मिलते रहे। डॉन वॉज टोटली अप फरहान्स एली। आफ्टर ऑल, बचपन से एक्शन थ्रिलर्स के लिए क्रेजी फरहान को मिल चुका था लाइसेंस टू मेक द कूलेस्ट लुकिंग मूवी ही ऑलवेज वांटेड टू मेक। फरहान्स न्यू एज टेक ऑन वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम, डॉन, was supported ably by his co-conspirators शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने 1978 के कल्याण जी आनंद जी के ट्रैक्स को दे दिया था एक टेक्नो ट्विस्ट, और फरहान की कूल मूवी को मिल चुका था एक इवन सुपर कूल म्यूजिक। Dawn allows you a certain slickness. You can mess around a lot more with the camera, you know, with the design of the film, the kind of clothes that they wear, the styling of hair, and you know, you can and the kind of rooms that they're in. But there are certain films that you have to be true to in a different kind of way. So when you do a film like Laksh, for example, that I did, I mean, it was made very differently. It didn't have the kind of slickness that Dawn has, you know, and it belonged to another world. So you have to just try to be as true as you can to that. And Dawn allows you the freedom, you know, to be able to have all these elements in it. A slick and super stylish Dawn was released in 2006. बिग बी की डॉन के फैंस ने भी माना कि दिस वॉज द ओरिजिनल रीमेक, यानी एक ऐसी मूवी जो रीमेक होते हुए भी ओरिजिनल थी। मूवी में एसआरके के स्टाइलिश लुक्स और ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी ने सडनली मूवी के स्टाइल कोशेंट को दे दी थी एक नई हाइट। स्टोरी और स्टाइल के अलावा डॉन का क्लिफ हैंगर क्लाइमैक्स भी अपने आप में था बॉलीवुड के लिए एक यूनिक टच, बिकॉज अभी तक बॉलीवुड का कोई भी फिल्म मेकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ सीक्वल का हिंट नहीं दे पाया था। फरहान broke the norms once again with this climax. I think it is a character that people are interested in, and that reflects in the way people have some expectancy with this movie. That they enjoy the character, they enjoy the way Shah Rukh plays the character, you know. So I think it's a good combination of actor character that's happened with this film. I mean, yeah, at the end of the day, it is if, as and when something interesting comes along as a thought, that where this character could go, because that's also very, very important. You can't just do a sequel for doing a sequel's sake. So if something does happen, I feel that it'll be great to take this character further. Dawn was a blockbuster hit, जिसने एक बार फिर फरहान को ला खड़ा किया था ए लिस्ट डायरेक्टर्स की लिस्ट में, और साथ साथ उनके उन क्रिटिक्स का मुंह भी बंद हो चुका था जिन्होंने लक्ष्य के बाद उन्हें वन टाइम वंडर कहना शुरू कर दिया था। अब फरहान सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं थे, ही वॉज रेडी टू डॉन अ न्यू हैट ऑफ बीइंग अ मेंटर एंड गिव सम न्यू एज फिल्म मेकर्स अ ब्रेक। फरहान ने ये सब कुछ करते हुए कैसे किया खुद को भी रीइन्वेंट, वी विल सी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स, जिसमें आज बात हो रही है बी टाउन की मोस्ट मैवरिक स्टोरी टेलर फरहान अख्तर की। There is no such thing left as a typical film. I think the definition of typical film has only changed. So I don't know, I don't buy into that theory, which is why maybe my work looks the way it does and is construed to be the way it is. फरहान ने बॉलीवुड में अपनी स्टाइलिश और उबर कूल मूवीज से अपना स्टैंप छोड़ने के बाद अब गेम को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की पूरी तैयारी कर ली। फिर चाहे वो उनकी लॉन्ग टाइम असिस्टेंट रीमा काकती की डायरेक्टोरियल डेब्यू हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड हो, उनकी सिस्टर और पार्टनर इन क्राइम जोया अख्तर की लक बाय चांस एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी पावरफुल मूवीज, अभिनव देव की गेम हो, रॉक म्यूजिक के बैकड्रॉप के साथ रिस्क लेकर रॉक ऑन, या फिर एक डार्क रोमांटिक थ्रिलर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। फरहान ने एज अ प्रोड्यूसर बॉलीवुड को दी एक से बढ़कर एक डिफरेंट, फ्रेश एंड यंग मूवीज अक्रॉस जॉनर्स। रॉक ऑन वाज अ रेवलेशन नॉट ओनली फॉर फरहान्स फैंस बट ऑल्सो फॉर हिज क्रिटिक्स, बिकॉज फरहान का ये रॉक स्टारी अवतार अब तक किसी ने देखा नहीं था।
रॉक ऑन ने बॉलीवुड को फरहान के रूप में दिया एक सुपर सेंसिबल और थॉटफुल एक्टर, जिनको हमने इस मूवी के बाद लगातार कई एजी और ऑफबीट मूवीज में अलग अलग तरह के रोल्स में देखा। एज ए क्रिएटिव पर्सन फरहान ने लगातार खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करके किया है खुद को एक्सप्रेस और अपने फैंस को इम्प्रेस। Meanwhile, बॉलीवुड अब तक डॉन के स्टाइल और लुक्स को मैच नहीं कर पाया था, एंड फरहान was ready with another milestone in technical brilliance and great style. For me, Dawn 2 is a lot closer to my take on what and the action film genre is like. This is the kind of action movie that I enjoy. So I'm kind of revealing my sensibility or my kind of like. As far as this genre is concerned. Starring Shah Rukh Khan once again as the most stylish gangsters of all time, Dawn 2 became one of the biggest blockbusters of the year, and with its grand success, Farhan entered the 100 crores club effortlessly. मगर Dawn 2 के लिए फरहान ने technical brilliance को एक नया edge दिया by converting the movie into 3D. डॉन 2 को पिछली डॉन और अब तक आई सारी बॉलीवुड मूवीज से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाने की अपनी इस कोशिश में फरहान लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। फिल्म का एक एक स्टंट, एक एक मोमेंट बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह कोरियोग्राफ्ड और प्लान्ड था, और फरहान के इस विजन को पूरा करने के लिए न सिर्फ फरहान की टेक्निकल टीम बल्कि डॉन SRK ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहरुख खान का मच पब्लिसाइज्ड स्टंट जिसमें कि वो एक हाई राइज बिल्डिंग से जंप करते हैं, फरहान की विजनरी थिंकिंग और उनके इनोवेटिव प्री प्लानिंग की वजह से बन गया मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट और बॉलीवुड के लिए फरहान की टेक्निकल ब्रिलियंस का एक और माइलस्टोन। बॉलीवुड में अपने इस लगभग एक डेकेड लंबे करियर में फरहान ने एज अ डायरेक्टर की हैं सिर्फ 4 मूवीज, लेकिन ये वो मूवीज हैं जिन्हें बॉलीवुड में हर लिहाज से एक लैंडमार्क माना जाता है, फिर चाहे वो स्टाइल हो, एक्शन हो, म्यूजिक हो या फिर स्टोरी टेलिंग। दिस मल्टी टैलेंटेड स्टोरी टेलर हैज शोड द वर्ल्ड ही इज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। बॉलीवुड स्टोरी टेलर्स के जेन नेक्स्ट डायरेक्टर्स की कहानी में ये थी वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी टेलर्स ऑफ अ टाइम, फरहान अख्तर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। Every film that I make, I feel I'm making it for everyone. I feel that at the end of the day, to be entertained by something or to be emotionally moved by something is very universal. नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे बी टाउन के एक और हॉट शॉट से। Until we meet again, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.